मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग कल जो पेज नंबर 143 ग्रामर निकाली। सबसे पहले तो सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। और ग्रामर की बुक निकालिए, पेज नंबर 144, पेज नंबर 144 ऑफ योर ग्रामर बुक। ओपन इट एंड कीप अ पेन एंड पेंसिल विथ यू, ठीक है, अपने पास रखिए। चलिए अब कल हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन नंबर बी तक बनाया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सी बनाएंगे, ठीक है। पेज नंबर 144 का लास्ट। फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज दीज फ्रेजेस। Dorothy having a smooth and curved surface. Find words in the passage that mean the same as these phrases, having a smooth, curved surface. Ceiling, ceiling.
A bright green precious stone often used in jewelry, emeralds. Three, very bad or unpleasant, बहुत खराब और unpleasant. Awful. Next, in a sincere way, sincerely, earnestly, in an unusual or strange manner, unusual और strange manner में, queerly, queerly. अब आइए क्वेश्चन नंबर डी, ध्यान देंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शंस फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में जो सुटेबल कंजंक्शंस दिए गए हैं इसी को भरना है. तो ध्यान से सुनेंगे. Dorothy walked boldly through a little door and found herself in a wonderful place. And to I have come to you for help. Dash you are a great wizard, Dorothy told Ossis. I have come to you for help since you are a great wizard. I don't like your country. I don't like your country. Dash, it is so beautiful, said Dorothy. Although it is so beautiful, although we were
about to leave for the picnic when it suddenly began to drizzle. When? Next. Grandmother promised to bake a cake for me, dash, so I helped her in gardening. When I because हो गया है इसमें विकास हो जाएगा और इसमें हो जाएगा सिंस. Next. My father has been coming to this library since he was a student. मेरे पापा तब से लाइब्रेरी आ रहे हैं जब से वो स्टूडेंट थे. My aunt was going to visit me on my birthday. And found herself in a wonderful place. दूसरा एक बार मिलाया जाए इसे. I have come to you for help because you are a great wizard, Dorothy told Oasis. Next, I don't like your country. Although it is so beautiful, for me, we were to leave for the picnic when it suddenly began to drizzle. ठीक है. Next, grandmother promised to bake a cake for me if I helped her in gardening. ठीक है. यहाँ थोड़ा सा if हो जाएगा इसमें 5 में if. Next time, my father has been coming to this library since he was a student. But बच गया. My aunt was going to visit me on my birthday, but she fell sick at the last moment. But मेरी आंटी मेरे बर्थडे में आने वाली थी, लेकिन वो एकदम अंतिम क्षणों में बीमार पड़ गई. चलिए, तो ये आपका पूरा हुआ. फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं. एक न्यू पैसेज है, वर्ड्स ऑफ विजडम. विजडम मीन्स बुद्धिमानी, यानी कि बुद्धिमानी के शब्द. ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. They were very hungry. वे लोग बहुत भूखे थे. All day long they had wandered in the forest without any food. बिना भोजन के वे पूरे दिन जंगलों में इधर उधर भटकते रहे भोजन की तलाश में.
Now they decided to try their luck in the village. अब उन लोगों ने सोचा कि अपना भाग्य जो है यानी कि भोजन पाने की भोजन जो है गांव में देखा जाए कि गांव में कहीं कुछ खाने को मिल जाए। ठीक है, तो गांव में उन्होंने अपना लक जो है आजमाना शुरू कर दिया। The young man and his older companion stepped out of the thicket and made their way to the nearest hut. वह जवान व्यक्ति और जो उसका एक बूढ़ा साथी था, बूढ़ा व्यक्ति था, उनके उस व्यक्ति के साथ, तो वो दोनों एक पास के ही गांव में जो है घुस गए। A family of 4 was sitting around a wood stove and eating a meal. यानी कि 4 लोगों का परिवार एक साथ बैठ करके भोजन कर रहा था और एक वुड स्टोव यानी कि लकड़ी वाला जो होता था चूल्हा, ठीक है, लकड़ी वाला चूल्हा नहीं होता था जिसमें लकड़ी वगैरह डालते थे, तो उसके चारों तरफ वो बैठ करके भोजन कर रहे थे। An elderly woman was frying puas and the others, her son, grandson and granddaughter were eating. एक बेचारी बूढ़ी औरत, बूढ़ी तो नहीं लेकिन हाँ मतलब कह सकते हैं 40-45 वर्ष की एक औरत जो है पुए को ऑयल पैन में फ्राई कर रही थी और जो बाकी 3 लोग थे उनका बेटा, ग्रैंडसन यानी कि उनका पोता एंड ग्रैंड डॉटर और उनकी पोती, वे सब मिल करके खा रहे थे। The woman poured a ladle into the hot oil in the pan and then waited for the pua to cook before flipping it over carefully. वह औरत क्या कर रही थी, तो पुआ जैसे बनाते हैं एक कड़छू में उठा करके उसमें डाला जाता है, तो उसे डाल रही थी and then waited for the pua to cook before flipping it over carefully. और फिर वो उसको 2-4-5 मिनट जो इंतजार करती थी जब तक कि पूरा पक न जाए। It was a slow process and everyone had to wait a long time for their turn to get a pua. यह एक लंबा प्रोसेस था और उस एक पुआ खाने के लिए उन सभी को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। एक कभी उसका ख़त्म हो जा रहा था, कभी उसके थाली का ख़त्म हो जा रहा था, कभी उस बच्चे के, तो इस तरह से इसी प्रकार चल रहा था। The young boy was getting impatient. दादी, is it done yet? जो छोटा बच्चा था उनका पोता, ठीक है, तो वो कह रही थी कि दादी क्या अभी तक नहीं हुआ है? He held out his plate with an outstretched arm. इस तरह से जो है वो फैला करके उस प्लेट को बैठा हुआ था, ready to take the pua as soon as it was ready, और वो तैयार था कि कब पुआ कढ़ाई से निकले और मैं प्लेट में इसे ले लूँ। Then finally the pua was on his plate and he plunged his fingers straight into its streaming golden center. ठीक है, जैसे ही पुआ तैयार हुआ उस बच्चे ने थाली आगे बढ़ा दी, प्लेट आगे बढ़ा दिया और जो बीच वाला जो पोर्शन होता है जो थोड़ा सा उभड़ा हुआ होता है, स्वैलो होता है, फूला हुआ होता है, तो उसी में उस बच्चे ने क्या किया कि एक उंगली जो है उसमें डाला। But no sooner had he done this than he cried out, "Ah!" For he had burnt his fingers. लेकिन जैसे ही उसने अंगुली उस कुएं में डाला, उसका अंगुली जो है जल उठा और वो अचानक जोर से तेजी से उसने अपनी उंगली निकाली और जोर से चिल्लाने लगा, "आह!" क्योंकि उसका जो उंगली था वो जल चुका था। "Silly child," exclaimed his grandmother.
हाउ कैन यू बी सो फुलिश। तो उसकी दादी माँ ने कहा कि बेवकूफ बच्चा कहीं का, क्या तुम मूर्ख हो जो तुम नहीं जानते हो कि गर्म होगा। शी चाइटेड, उसने दादी माँ ने उस बच्चे को समझाया। यू आर एज फुलिश एज चंद्रगुप्त हु इज ट्राइंग टू कंकर मगध फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, वो कहती है उस बच्चे को कि तुम बिल्कुल चंद्रगुप्त जैसे मूर्ख हो, जो कि मगध पर विजय पाना चाहता है, मगध पर जीत हासिल करना चाहता है। द बॉय स्टॉप्ड वेलिंग एंड आस्क्ड व्हाट फुलिश थिंग हैज चंद्रगुप्त डन दादी। उस बच्चे ने रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया जब चंद्रगुप्त के बारे में सुना, और उसने अपनी दादी माँ से पूछा कि दादी माँ, चंद्रगुप्त ने कौन सी बेवकूफ़ी का काम किया है। ओह, दैट सिली मैन इज ट्राइंग टू ओवरथ्रो द किंग ऑफ मगध बाई रेजिंग एन आर्मी एंड फाइटिंग हिम फ्रॉम विद इन हिज ओन किंगडम। तो दादी माँ कहती है कि वह मूर्ख व्यक्ति जो है मगध के राजा को हटा देना चाहता है अपने सैन्य शक्तियों के बल पे और लड़ाई के बल पे, फ्रॉम विद इन हिज ओन किंगडम। ऑब्वियसली ही इज लूजिंग, निश्चित रूप से वह हारेगा ही, चंद्रगुप्त जरूर हारेगा। द बॉयज फादर स्टॉप्ड ईटिंग एंड स्माइल्ड एट हिज मदर्स रिमार्क्स। ओहो, सो अम्मा, what would you advise चंद्रगुप्त to do? उस लड़के के पिता ने अपनी माँ की ओर देखा, यानी कि दादी माँ की ओर, और खाते हुए स्माइल करते हुए उन्होंने माँ की तरफ देखा और कहा, अच्छा तो अम्मा, तो आप चंद्रगुप्त को क्या सुझाव देना चाहेंगी कि उसे क्या करना चाहिए। अरे, he should take small bites of the puwa from the edge and not the center. उसने कहा, दादी माँ ने उसे समझाया, ओह, he should take a small bites of the puwa from the edge, not the center. उसे पुआ खाने की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त को आसपास से करना चाहिए, बीच से नहीं। मिडिल से अगर वो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ एक्चुअली एक विजडम भरी बातें यहाँ कही जा रही है, बुद्धिमानी भरी बातें, ठीक है। तो उसे बीच से क्या होगा, गर्म होगा। अब जैसे किसी देश के अगर बीच में चले जाइएगा सेंट्रल में, तो आप चारों तरफ से घिर जाएंगे। अगर आपको किसी देश को जीतना है तो जो उसका बॉर्डर कंट्रीज़ है पहले उस पर जीत हासिल कीजिए, ठीक है, उसके बाद, यानी दादी माँ का ये कहने का तात्पर्य है। द सेंटर इज ऑलवेज हॉट एंड विल बर्न हिज फिंगर्स। उन्होंने कहा, दादी माँ ने, कि सेंटर जो होता है हमेशा गर्म होता है और उंगली जो है जल सकती है इससे। The two men at the window were dumbfounded on hearing such wise words from a village woman. दो व्यक्ति जो अभी भी उस घर के बाहर खड़े थे और उन बुद्धिमानी की बातों को सुन रहे थे, और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बुद्धिमानी भरी बातें जो है मुझे गांव में सीखने को मौका मिलेगा। Immediately they withdrew to the forest, their appetite lost. ठीक है, तुरंत ही वो फिर से जंगलों की ओर निकल गए और उनकी भूख भी अब जा चुकी थी। The words of the old woman kept resounding in their heads. उस बूढ़ी औरत की बातें उन दोनों के मन में अभी भी घूम रही थी।
Of course, I have been so foolish. तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।